गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है सर, चलो आ जाओ बस चलो आ जाओ जब अभी तो सारे जुड़ेंगे। सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी तो हम अपने फाइनल सेशन पे पहुंच गए हैं। आज के दिन के सेकेंड डे ऑफ 5 डेज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, उसके हम फाइनल सेशन पे हैं। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर ब्रिजेश कुमार शर्मा जी, प्रिंसिपल SBV शहीद हेमुकलानी लाजपत नगर। He has 23 years of experience of working as a lecturer English in DC Arya Senior Secondary School. In 2014, he was selected as principal through UPSC with All India rank 2. He joined his school SBV Shahid Himaklani as pilot principal in 2014. He has published various research papers and journals with SCRT and other organizations. He was the project head of spoken English, covering 62,000 students of DOE in collaboration with Macmillan, British Council and Trinity College of London. He represented DOE in international conference, namely New Directions, organized by British Council at Yokohama, Japan. He is a school leader of India, SLI, with 2 years of training from ARK. And he is here with us today to guide us to ensure safety and security of children in schools. Welcome, Rajesh sir. Thank you, Nishta, and thank you very much for this opportunity. First of all, I would like to congratulate all of you who have been newly promoted vice principals, and I wish you all the best in your new role, because it is a shift from a teacher to an administrator. Now you are on the other side of table, where you would be acting as an HOS. Some of you may be acting as a vice principal under someone. So it's a big change. And there are a lot of things that we have to now learn. There are so many things which we can share about. As far as question of administration and academics concerned, let me tell you, these two are different fields. So far, you were only a subject teacher. Your area of working, jurisdiction was only your classroom and your subject. But now you are going to have a bigger role, bigger challenges. I won't say that these are problems, but I would call them challenges. And since all of you are in the system, I think most of you are more than 15 years and 20 years. So you have a part of the system. So there is nothing new to tell you. It is just only an exchange of experiences that we have in the school. Being the principal, I would like to share some of the practices that we generally have. Because as far as question of theory is concerned, you will be finding thousands and thousands of testimonials, thousands documents, and so many other things which you can read out. And there are so many circulars also. So if you go through them, so you would be able to understand each and everything. But I would like to focus on certain practical problems. Friends, your role is very important when you are working as a vice principal under someone, because principal needs not only the help but good inputs also, execution also from the vice principal. Some of you would be working as DDO also, and those who are going to hold the responsibility of HOS, that's a bigger challenge.
So the topic that has been given to me is ensuring safety and security in school. School, am I able to communicate? We can use both the languages, Yes, sir. right? Yes, So sir. let's, I mean, थोड़ा mix हम बात करते हैं ताकि Yes. थोड़ा सा हम समझ लें. And you are free to ask questions or queries later on. So मुझे जो टॉपिक दिया गया है, that is ensuring safety and security of children in our school. There are so many challenges, but this is one of the most important responsibilities of an HOS. So first of all, तो हम यही जानना चाहेंगे कि जब हम ये बात करते हैं कि स्कूल की सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या होती है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, what we basically have to do, what steps we have to take. Generally, स्कूल बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो शुरुआत होती है वो उसके घर से हो जाती है. And we generally define it as creating a safe environment for children, starting from their homes to their schools and back. यानी कि बच्चा जब अपने घर से निकलता है, स्कूल पहुंचता है और स्कूल से वापस घर आता है, तो इस पूरे पीरियड में हमारे बच्चे को किसी तरह की कोई सुरक्षा ना हो, वो सेफ रहे और उसकी जो सिक्योरिटी है, दैट वी हैव टू जस्ट सी. थ्योरेटिकली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 5 डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं चाइल्ड सेफ्टी के, जो फिजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमोशनल एंड पर्सनल सेफ्टी, social safety and security, and nowadays cyber safety and security. So these 5 dimensions are there which are related to child safety. Now I would focus only on 2 things which are very important and where you as an HOS can directly intervene, because some of the things are there where we need society, we need specialized people, but these 2 are very important for an HOS or for a vice principal or for a principal in a school. Then I would share with you one document from DOE, which is a circular which has very comprehensive guidelines and instructions to follow by all the school administrators, HOS. So let us now start with physical safety and security. इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारा मेन क्या उसमें होना चाहिए. एक HOS के पास कौन से वो चेक पॉइंट्स हैं जो HOS को, वाइस प्रिंसिपल को देखने चाहिए. तो सबसे पहले हम जो HOS है वो ये इंश्योर करे कि क्या उसके हर एक बच्चे के पास ID कार्ड है और क्या आईडी कार्ड में बच्चे की फोटोग्राफ है, उसका एड्रेस प्रॉपर है, उसका फोन नंबर प्रॉपर है. ये क्यों जरूरत है ये हम शेयर करेंगे लेटर ऑन व्हेन वी विल टॉक अबाउट सम केस स्टडीज, हाउ इट हेल्प्स एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहला काम कि जब आप एज एन HOS किसी भी स्कूल में ज्वाइन करें या आपको वाइस प्रिंसिपल आपको ये जिम्मेदारी दे, तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि हर एक बच्चे के पास ID कार्ड हो जिसमें जो कंप्लीट हो अपने आप में. जनरली हम क्या देखते हैं कि कुछ बच्चे मार्केट से एक छोटा सा एक आई कार्ड खरीद लेते हैं, उसी पर हम एक यूनिफॉर्मली हम वो ID कार्ड इशू नहीं करते, उसी को बच्चे यूज करते हैं. सो एंड द सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड टू गार्जियन. कई बार क्या होता है कि क्या संभावना हो सकती है कि जो बच्चों को पिक करने आते हैं, ड्रॉप करने आते हैं, वो व्यक्ति अनजान ना हो, वो व्यक्ति कोई ऐसा ना हो जो बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए नुकसान पहुंचा सकता हो. तो ऐसे में पेरेंट्स जो स्कूल में आते हैं उनको भी स्कूल एक आई कार्ड इशू करे और उस आई कार्ड को प्रॉपरली वेरीफाई करे, और जब भी बच्चा स्कूल में से को लेने आए या छोड़ने आए तो स्कूल का जो गार्ड है या जो ड्यूटी पर टीचर्स हैं वो उसको प्रॉपरली चेक करें टू इंश्योर कि बच्चे को हम किसी गलत हाथों में तो नहीं दे रहे हैं,
कोई और तो व्यक्ति नहीं जिसके साथ बच्चा चला जाएगा। So number 2, the first is identity card, complete, duly signed, duly verified by you to the students, and the second one is to the parents who comes every day for picking up the children or for dropping the children. Then every class teacher should have a list of students showing the mode of transportation used by the students to reach the school. When we talk about mode of transportation, हमारे जनरली सरकारी स्कूल में बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, वो बसेस में आते हैं और या फिर पैदल भी आते हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स हैं जो उनको खुद भी छोड़ने आते हैं। तो आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए क्लास टीचर के पास कि कौन सा बच्चा किस मोड का यूज कर रहा है। क्यों जरूरी है? इसमें एक बात यह है कि जो बच्चे बस का इस्तेमाल करते हैं, डीटीसी की बस करें या कोई भी बस इस्तेमाल करें, तो आप इंश्योर करिए कि वो उस बस की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके टाइमिंग्स क्या हैं, वो किन किन जगहों से आती है, कहीं कोई ऐसा रास्ता तो नहीं है जहाँ बच्चा बीच में उतर सके या किसी तरह की कोई उसको प्रॉब्लम हो। तो एवरी क्लास टीचर शुड हैव अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स pertaining to the transport facility. Now this was the point that we talk about कि स्कूल के HOS को क्या करना चाहिए। Then we talk about the school, inside the school. Once ये हमने उसके घर से चला, बच्चा स्कूल पहुंच जाता है। अब स्कूल में एज अ हेड आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले आप अपने स्कूल का ग्राउंड लीजिए और वहां देखिए कि कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं जो बच्चे के लिए नुकसान, सेफ्टी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, सेफ्टी को रिस्क में डाल सकते हैं। जनरली स्कूल्स में जो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि यही लिस्ट है, इट्स ओनली अ सजेस्टिव। यू कैन प्रिपेयर योर ओन कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट एज पर योर स्कूल्स रिक्वायरमेंट। फिर आपके स्कूल की लोकेशन क्या है, स्कूल का अंदर सिस्टम क्या है, उसके बेस पर आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन कुछ एक जो कॉमन चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जनरली स्कूल में सीवर के जो मेन होल्स होते हैं जहां से उसको आप इंश्योर करिए कि कोई ऐसा तो मेन होल नहीं है जो खुला हुआ हो, क्योंकि कई बार बच्चे खेलते हुए, खासकर छोटे बच्चे, उसका शिकार बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंश्योर करिए कि आपके स्कूल में कोई ओपन मेन होल्स तो नहीं है। फिर देखिए कि जो बुशेस हैं वो थॉर्नी बुशेस तो नहीं है, कांटे वाली झाड़ियां तो नहीं है, उसको आप देखिए। फिर आप देखिए कि कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का कोई डेब्रिस तो नहीं पड़ा हुआ इधर उधर जो बच्चे के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बच्चा स्कूल के किसी भी कॉर्नर में कभी भी अकेला घूम सकता है। तो ये इस तरह की एक हैजर्ड्स होती हैं जो देखनी है। एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जिसको हम जनरली इग्नोर करते हैं और उसको हम मानते नहीं, वो है ट्री गार्ड्स। ट्री गार्ड से रिलेटेड मैं आपके साथ एक रियल घटना शेयर करूंगा कि किस तरह से ये नुकसान पहुंचाते हैं। ट्री गार्ड्स आप सब लोगों को मालूम है कि शुरू में जब हम पेड़ लगाते हैं तो वो लोहे का एक गार्ड होता है जो पेड़ के चारों तरफ लगा देते हैं, और वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी जरूरत भी नहीं होती, और वो लेकिन वो जोका तो वहां पर लगा रहता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं या सोचते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ट्री गार्ड कई बार बहुत खतरनाक साबित हुए हैं। मैं एक घटना शेयर करता हूं आपके साथ अपने स्कूल की। एक बच्चा जो चाइल्ड वेलफेयर होम से मेरे स्कूल में एडमिट था। ये बच्चे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, इनकी स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, इनको बहुत कॉन्स्टेंटली वॉच करना पड़ता है। तो ये बच्चा खेलता खेलता एक पेड़ की डाल पर चढ़ गया और वहां पर वो बैठा रहा। तो जैसे ही राउंड पर टीचर आए, पीटीआई सर आए, तो वो उनसे डर गया और वो पेड़ से कूदा। लेकिन जैसे ही कूदा तो वो जो ट्री गार्ड लोहे का था उसको पेट में घुस गया, क्योंकि वो निकुला था। उसको बहुत सीरियस इंजरी हुई, संभाला गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन ये अगर हम पहले से ध्यान देते कि इस तरह के ट्री गार्ड्स ना हो तो कई बार खेलते खेलते ये भी आप बच्चे की सिक्योरिटी हैजर्ड बनते हैं। तो अगर आपके स्कूल में ट्री गार्ड्स हैं तो आप उनको इमीडिएटली रिमूव कराइए। उसके बाद हम देखेंगे, ये भी हम देखेंगे कि भाई कहीं पर कोई स्लाइड्स तो नहीं है, झूले की कोई स्लाइड्स तो नहीं है, क्या वो सॉफ्ट कर्व्ड हैं या वो पॉइंटेड हैं, तो आप देखिएगा। अगर वो पॉइंटेड हैं तो आप उसको ठीक कराइए, सॉफ्ट कर्व्ड है तो आप इंश्योर करिए कि बच्चा जब भी वहां से संपर्क में ना आए। इसके अलावा टाइल्स है, रेलिंग हाइट्स हैं, स्टेयर केस के आप देखिएगा कोई
खुली जगह तो नहीं है कि जहां से बच्चा भागता हुआ बीच में से स्लिप हो जाए। अगर इस तरह की कोई चीज है तो आप उसको भी ध्यान में रखें, वो भी आपकी इस लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए। अब इस सब के लिए हम कैसे करें, क्योंकि HOS सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा। हमारे हर स्कूल में स्टेट मैनेजर है। स्टेट मैनेजर को आप कहिए कि वो एक रजिस्टर बनाए और स्कूल में एक अपनी कमेटी बनाए, स्कूल का पूरा राउंड लें और जितने भी पोटेंशियल हैजर्ड्स इस तरह के जो मैंने आपको गिनवाए कहीं दिखाई दें तो स्टेट मैनेजर उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करें और फिर देखें कि उनको क्या एक्शन लिया जाए ताकि बच्चों के लिए उसका रिस्क न रहे। अब पहला हमारे मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने पहले देखा कि बच्चा घर से स्कूल सुरक्षित कैसे पहुंचे। उसके लिए हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया, आई कार्ड, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन मोड, पेरेंट्स के आई कार्ड। जब ये सब हम फॉलो करेंगे, बच्चा जब स्कूल में आ गया तो नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट नाउ ही इज सेफ इन द स्कूल। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे स्कूल में वो कौन सी जगह है जो बच्चे की सेफ्टी के लिए नुकसान, सेफ्टी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। उनको मैंने आइडेंटिफाई किया। अब उनको आइडेंटिफाई करने के बाद अब मुझे और क्या करना है, तो मुझे करना है कि मुझे अब अपने प्रीमाइसेस की, अपने स्कूल के इंटरनल पार्ट की मेंटेनेंस को देखना है, जिसमें सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा प्रीमाइसेस पर। जो स्टेट मैनेजर ने जो अब तक नोट किया था उन पर हमने क्या एक्शन लिया, उस एक्शन के लिए हमें हमारे स्कूल के अंदर क्या प्रावधान है, क्या SMC कर सकते हैं या कम्युनिटी रिसोर्सेज हमने डेवलप की हुई हैं या केयर टेकिंग ब्रांच उसको मदद करेगा। ये आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज हमें कहाँ से मिलेगी। PWD का क्या काम है, आपका स्कूल अगर पायलट स्कूल है तो DTDC का क्या काम है, आपका स्कूल अगर PWD के अंदर है तो डिफरेंट जो सिविक एजेंसीज हैं वो कैसे आपके प्रीमाइसेस को मेंटेन करने में मदद करेगा, इस सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कोई पॉइंट है कि जो बच्चों की सेफ्टी के लिए खुले तार हैं या प्रॉपर स्विच नहीं लगे हुए हैं, वहां पर अगर मुझे जरूरत है तो PWD के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है तो मेरे पास पूरा डिटेल होना चाहिए। अगर मेरा पेड़ पौधों से संबंधित है तो हॉर्टिकल्चर से मेरा कांटेक्ट होना चाहिए। उसके बाद गार्डन हो, प्ले ग्राउंड हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, गार्डनिंग वगैरह के जितनी भी हैजर्ड्स हैं वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दूर करेगा या DTDC का डिपार्टमेंट उनका एक्सक्लूसिव है वो ठीक करेगा। बिल्डिंग के लिए आपका सिविल वाले करेंगे। तो ये चीजें आपने ये स्टेप्स लेने हैं। उसके बाद जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी में हो, आप लैब असिस्टेंट के थ्रू, आप केमिस्ट्री टीचर के थ्रू आप इंश्योर करिए कि हमारी लैब में हमारे उसमें किसी तरह के कोई ओपन केमिकल्स तो नहीं है, कोई गैस का सिलेंडर तो इम्प्रॉपरली नहीं रखा हुआ है, क्योंकि वो भी वो चीजें हैं जहां पर बच्चे की सेफ्टी को रिस्क हो सकता है। क्या मेरे जो लैब हैं वो सेफ हैं, क्या मेरे टॉयलेट्स बिल्कुल सेफ हैं, वहां फिसलन तो नहीं है। कई बार जो स्वीपर्स हैं उन्होंने जो टॉयलेट अगर प्रॉपरली क्लीन किया है तो वो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो वहां पे आप इंश्योर करिए अपनी टीम के थ्रू कि वो इन सब चीजों को देखे। कैंपस का फेमिगेशन, एनुअल पेंटिंग, ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार कुछ पेंटिंग्स बहुत पुरानी लगी होती है और वो कभी भी गिर सकती है, तो आप इंश्योर करिए कि वो उनको आप चेक करें और उसको आप मेंटेन करें। फिर मैं दोबारा से उसी बात को कहूंगा कि स्टेट मैनेजर इज द बेस्ट पर्सन हु इज असाइंड दिस ड्यूटी बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ओनली गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट meet the target. We basically have to follow, we have to support, and we have to guide. That is the most important, because when you lead from the front, your workers will be doing their work. So this is what you have to do next as a vice principal. Now, most injuries, most of the accidents, most of the fatal injuries, they take place either during recess period or in a period when there is no teaching. So this is the most crucial time where we have to be extraordinarily careful, extraordinarily alert
because students are free during this period of time and there is no one to check them. So here you have to ensure, number one, round duty to teachers on roster basis during interval and dispersal time of school. It has been assigned or not assigned, please ensure it. आप अपने जो भी टाइम टेबल इंचार्ज हैं, आप उनको पूरे हफ्ते का एक राउंड ड्यूटी लगाएं, भाई कौन टीचर ग्राउंड में होगा, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हमारी अच्छी कल्चर हम डेवलप कर लेते हैं कि भाई ये काम तो बस पीटीआई का है, बाकी का काम नहीं, और एक व्यक्ति पूरे स्कूल को नहीं देख सकता, तो वहां पर पीईटी की मदद से कुछ एक टीचर्स की रोस्टर ड्यूटी आप जरूर लगाएं और रजिस्टर उसका मेंटेन करें, और जो भी इंचार्ज है उसको आप इंस्ट्रक्शंस दें कि उसको मेंटेन करें। हफ्ते में एक बार एज एन एचओएस और एज वाइस प्रिंसिपल, इट इज योर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी to monitor, to see the performance and to ensure whether it has been maintained properly or not maintained properly. So, a very important thing is that the physical education teacher should be in the ground, not in the staff room. Because if students are alone in the playground, they are always at risk. आपस में लड़ाई भी कर सकते हैं, उनको चोट भी लग सकती है, तो वहां पर कोई ना कोई मेंटेन करने वाला होना चाहिए. All of you must be knowing an incident in one of the schools, one directorate, where a child was he died. He was सर ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी साउंड ब्रेक हो रही है बीच में. स्कूल में ये हुआ था कि वहां पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और जब नाइल्स नाम एक जो भाला होता है उसको फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जब एक बच्चे ने फेंका तो दूसरा बच्चा भाग करके आ गया और उसके पेट में से वो निकल गया, उस बच्चे की वहीं पर डेथ हो गई. तो रीजन उसमें वहां के ग्राउंड में कोई नहीं था और वो काफी उसमें रिएक्शन भी हुआ, लेकिन जो लाइफ चली गई दैट कुड नॉट. सो बहुत सारे केसेस है, क्योंकि आप लोग तो स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको मालूम है कि ज्यादातर बच्चों को चोट हाफ टाइम में ही लगती है, रिसेस पीरियड में ही लगती है. तो टू अवॉइड सच थिंग्स, इंश्योर कि आपके बच्चे कभी भी ग्राउंड में या कॉरिडोर में अकेले ना हो, वहां पर कोई टीचर, कोई पीटी अवश्य होना चाहिए. लंच बच्चे भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, टाइम वही होता है, लेकिन हम जो हमारी प्रैक्टिस है कि हम लोग स्टाफ रूम में या एक जगह अलग बैठ लंच करते हैं. अगर अपने स्कूल में संभव है तो ऐसी भी एक गुड प्रैक्टिस हम शुरू कर सकते हैं कि जहां टीचर्स अपना लंच अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ करें. इससे दो फायदे हैं. पहला फायदा तो ये कि बच्चे जो हैं वो आपके कंट्रोल में, आपके सामने हैं. दूसरा, एक शेयरिंग की कल्चर डेवलप होती है, बच्चे को ईटिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं और एक तरह का डिफरेंट ही बॉन्ड डेवलप हो जाता है बच्चों में और टीचर. ऐसे में बच्चा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में और कुछ स्कूल्स में, पर्सनल मैंने देखा है कि बच्चे भागते भागते लंच करते हैं, उनको बैठकर खाने की आदत नहीं है. तो अगर इस तरह की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं तो वो सेफ्टी भी है और वैल्यू जनरेट होती है बच्चों में, शेयरिंग की भी वैल्यू, और कम से कम एक हाइजीनिकली भी हम खाना कैसे खाएं ये भी उसका एक एक्स्ट्रा फायदा. This point which I'm going to talk about, this is also very important, equally important. अगर हमें ये लगता है कि हमने ड्यूटी लगी and people are not taking it seriously, so as an administrator, I would suggest you is so far only a teacher, you were confined only to your classroom, you were confined only to your subject, and your responsibility was only up to this point. But now you are an administrator who has to look after, who has to ensure safety and security of thousands of families, because every child is a family in itself. So वहां पर अगर लगता है कि आपने ड्यूटी लगाई और ड्यूटी जिसकी लगाई इसको परफॉर्म नहीं किया, नेग्लिजेंट अगर आपको लगता है, तो प्लीज डोंट हेजिटेट इन टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर रूल्स. Because sometimes it is also important and it has to be implemented strictly,
because it is our duty to ensure implementation of policies and ensuring safety and security of students. So these are the things that an HOS you have to ensure. Now, in addition to that, देखिए इमरजेंसी कब आ जाए, चोट कब लग जाए, किसी को नहीं पता। हम में से, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, हम में से कोई भी व्यक्ति इतना ना तो प्रोफेशनली ट्रेंड है और ना ही हम लोगों को कभी ऐसा अब तक मौका मिला कि जिसमें हमें किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने का मौका मिले, क्योंकि एज अ टीचर भी हमारे इंचार्ज होते हैं। ऑल ऑफ यू हैड बीन वर्किंग एज अ पीजीटी, you had a lot of responsibility of subject, but now you need a support staff also. तो इसलिए आपको अपने स्कूल के लिए जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, जैसे आया है, स्वीपर्स हैं, पियोन्स हैं, दूसरी हेल्प हैं, उनको भी हम अगर तैयार करें, उनको भी हम ट्रेनिंग दिलवाएं कि भाई किस तरह से कोई अगर इमरजेंसी होती है तो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। क्योंकि अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आ जाती है, पूरी टीम खड़ी हो जाती है, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी तभी सॉल्व हो जाती है। बिकॉज जनरली व्हेन समथिंग हैपेंस वी गेट नर्वस और उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की पूरी टीम है इमरजेंसी को हैंडल करने की, तो हमें सपोर्ट भी मिलती है और हम उस इमरजेंसी से बच्चे की जान भी बचा सकते हैं। और now next point is educating child about safety precautions. As a teacher or as a head, it is our responsibility, and in a way it makes the things easier for us. जिन बच्चों की सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इन बच्चों को भी एजुकेट करें, उनको भी सेंसिटाइज करें, उनको भी बताएं कि किस चीज से नुकसान हो सकता है, और ये संभव है जब हम बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन रखें। अब ये कम्युनिकेशन के कई सारे मोड स्कूल में हो सकते हैं, टीचर्स के थ्रू भी हो सकता है, मॉर्निंग असेंबली के थ्रू भी हो सकता है, पीटी के थ्रू भी हो सकता है। एज एन हेड ऑफ द स्कूल आपको भी समय मिल सकता है, कोई ऐसा प्लेट मिल सकता है जहां पर आप इस तरह के बच्चों के साथ बातें शेयर करें। क्योंकि अगर जिसकी हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, अगर वो भी कुछ चीजों को फॉलो करेगा, तो फिर इमरजेंसी फिर कभी कभी रेयरली ही होती है। बिकॉज अगर एवरीबडी इज अवेयर, एवरीबडी नोज व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, देन थिंग्स बिकम इजियर। सिर्फ आप प्रयास करते रहें लेकिन दूसरे को मालूम ही नहीं है कि यहाँ रिस्क है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को आप एजुकेट करिए जब भी मौका मिले कि बेटा सीढ़ियों पर भाग कर नहीं चलना, जो बड़ा आसान है। इसके लिए हमें कोई सेमिनार करने की जरूरत नहीं है या बच्चों को बिठा करके कोई लेसन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम में से कोई भी, जरूरी नहीं पीटीआई, जरूरी नहीं सब्जेक्ट टीचर पर्टिकुलर, कोई भी जिस बच्चे को अगर सीढ़ियों पर भागते हुए देखता है तो हमारा फर्ज बनता है कि बच्चे को हम रोकें और उस बच्चे को समझाएं, बेटा अगर आप सीढ़ियों पर ऐसे चलेंगे तो आपको चोट लग सकती है। तो सबसे पहले बच्चों को आप सिखाइए, उनको उनके दिमाग में यह बात डालिए कि सीढ़ियों पर करने से रिस्क हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। नंबर 2, बच्चा क्लास से बाहर ना निकले। अब बच्चों को समझाएंगे, क्लास में बताएंगे। बच्चा क्लास से बाहर क्यों ना निकले, ये बच्चे को समझाना बहुत जरूरी है। उसको आप कोई भी कारण उसको आप कन्विंस करिए, प्यार से समझाइए, और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग, तो आप फ्लोर इंचार्जेस बनाते हैं या टीचर्स की जिम्मेदारी लगाते हैं, तो वहां पर आप इंश्योर करें कि बच्चों को बाहर क्लासेस में ना भूलें। स्ट्रेंजर डेंजर बहुत कॉमन है, सभी लोग अपने घर में भी बताते हैं कि भाई कोई भी अपने आप को, जो स्ट्रेंजर जिसको आप नहीं जानते, किसी अजनबी से आपके संपर्क में ना आए, किसी के बहलावे में ना आए, किसी से कुछ खाने की चीज ना लें, और उनके लिए कुछ उनके साथ कहीं ना जाएं। ये सब चीजें हम एज अ टीचर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल प्रीमाइसेस, क्योंकि स्कूल में भी कई बार कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं कि स्कूल के इंटरनल स्टाफ ने भी वो भी बच्चों की सेफ्टी के लिए हानिकारक सिद्ध हुए हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ बच्चे को स्कूल में मौत तक हो गई है, फिर इंक्वायरीज हुई हैं कैसे मारा, किसने मारा, तो उसमें कई बार स्कूल इन्वॉल्वमेंट पता लग जाता है, कई बार वो कुछ। तो इन चीजों से बचने के लिए आप बच्चे को हमेशा बताएं
कि जब भी आप किसी भी अजनबी जो आपको नहीं जानता, किसी के कहने सुनने में आप ना। नंबर 2, जो स्कूल्स में अगर आप देखेंगे, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि बच्चों के अपने गैंग बने हुए होते हैं। ये वो गैंग है, ये वो गैंग है, स्कूलों के अपने गैंग बने। अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की क्लास में पिटाई कर दी तो वो क्लास नहीं बताएगा, वो प्रिंसिपल को नहीं बताएगा, कई बार वो पेरेंट्स को भी नहीं बताएगा, वो किसी ऐसे भाई को फोन करेगा जो 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 उनके अपने रक्षक बन करके उनके सामने आते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा बाहर निकलेगा, फिर वो आपस में लड़ेंगे, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इससे बचने के लिए आप बच्चे को कॉन्फिडेंस में लीजिए और बच्चे को, बेटा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई बच्चा किसी तरीके से धमकी दे रहा है या कोई लड़ रहा है, तो सबसे पहले वो क्लास टीचर को रिपोर्ट करें, क्लास टीचर फिर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें, या बच्चा भी डायरेक्ट प्रिंसिपल को रिपोर्ट करे। आप बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्ड बना लीजिए कि बच्चा अपने मन की बात आपको कह सके। आप में से एज ए टीचर तो बच्चों के साथ क्लोज होते हैं कि वो बच्चे के परिवार को, बच्चे के पर्सनल को, वो बहुत अच्छे से एक बॉन्ड बन जाता है, फैमिली रिलेशन बन जाते हैं। लेकिन जब आप HOS बन गए तो अब आप ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अब आप सबको एक इतना पर्सनली बॉन्ड बना सकें। लेकिन आप एक सिस्टम आप बना सकते हैं अपने टीचर्स के थ्रू, अपने बच्चों के थ्रू, कि कोई बच्चा अगर कुछ शेयर करना चाहे तो वो आप उसको बच्चे को उपलब्ध हो और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं अगर प्रिंसिपल से बात करूँ या करूँगी तो मुझे सुना जाएगा। तो इस तरह का माहौल आप बनाइए और बच्चे को आप बिल्कुल बार बार कहिए कि आप क्लास टीचर। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ जो जनरली होती है कि अगर कोई बच्चा किसी टीचर के पास जाता है तो बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चे को ही डांट देते हैं और बच्चे की बात नहीं सुनते। तो वहां पर आप क्लास टीचर को भी सेंसिटाइज करें कि बच्चा कुछ भी कहे, उसको अपना बच्चा समझकर आप उसकी बात सुने जरूर, और सुनने के बाद एक्शन जरूर लें। बच्चे को बताएं कि देखो बेटा, हमने उस बच्चे को समझा दिया है या डांट दिया है, ताकि बच्चे को ये लगे कि क्लास टीचर को कुछ बात बताने का फायदा हुआ। क्योंकि कई बार हम पूछते हैं तूने क्लास टीचर को क्यों नहीं बताया, सर वो तो सुनते ही नहीं, उल्टा मेरी कभी निकाल देते हैं, उल्टा उन्होंने मुझे मार दिया। तो इस तरह के कल्चर को आप स्कूल में से फोकस करिए और ये आपसे संवाद से संभव है। दूसरा, आप ये देखिए कि बच्चा कोई अंदर ही अंदर उसको कोई चीज परेशान तो नहीं कर रही है, क्योंकि कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को भी कुछ चीजें नहीं बताते डर के। तो वहां पर आप बच्चे को सिखाइए कि बेटा आप अपनी बात क्लास टीचर से भी शेयर करिए, प्रिंसिपल से शेयर करिए और अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए। पेरेंट्स को आप जब भी PTM होती है, पेरेंट्स से जब भी आपका कम्युनिकेशन होता है, तो आप पेरेंट्स को भी ये बात कहिए कि भाई आप अपने बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करें, उसकी बात सुने और उसकी बात पर ट्रस्ट करें, क्योंकि बच्चा हमेशा झूठ नहीं बोलता। कई बार हम बच्चे को डिस्करेज कर देते हैं और बच्चा जो होता है वो फिर कहीं ना कहीं अपनी बात को शेयर करेगा, और वो शेयर भी उनके साथ करेगा, अपने पीयर ग्रुप में करेगा, सब जैसे हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं गलत हाथों में पड़ जाते हैं और उनको अल्टीमेटली फिर उनकी सेफ्टी का वो कंसर्न बन जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि जो बच्चों ने गैंग बना दिए उसमें वो शामिल हो जाते हैं, उनके साथ घूमना, उनके साथ फिरना और पढ़ाई से विमुख हो जाना, और अंदर ही अंदर कोई ना कोई अपनी मानसिक शारीरिक समस्या पैदा करना। तो ये भी एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एक ऐसा अंग है जिसको हमें स्कूल में एज एन HOS, एज ए टीचर, वी हैव टू एड्रेस टू। PTA का मैंने आपको बताया, SMC का मैंने आपको बताया कि भाई उनको हम इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं, जो स्कूल की मॉनिटरिंग में हम उनको शामिल कर सकते हैं। जितने भी हमारी कमेटीज हैं, एंटी बुलिंग कमेटी है, ग्रीवियंस कमेटी है, जो स्कूल में हमारे लिए मैंडेटरी होती हैं, ये सब आपको डिफरेंट सर्कुलर्स के थ्रू स्कूल ब्रांच से, इधर से आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी उसकी जरूरत है, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। देन आप इंश्योर करेंगे कि आपके स्कूल में ये जो कमेटीज मैंने मेंशन की हैं, ये सब मैंडेटरी हैं एज पर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हेडक्वार्टर। आपके पास
हर जो HOS है वो इंश्योर करेगा कि आपके स्कूल में एंटी बुलिंग कमेटी है तो किसी पेपर्स पर है या फंक्शनल है, कि आपको इंश्योर करना चाहिए। कमेटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बहुत केसेस एज अ सब्जेक्ट टीचर आई एम 100% श्योर दैट एज अ सब्जेक्ट टीचर आपको ऐसे बहुत बच्चे मिले होंगे आपकी क्लास में जो आपके अंदर कन्फाइड करते हैं, बताते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे लास्ट मीटिंग में एक टीचर ने मुझे शेयर किया था कि उनकी क्लास में लड़की थी एंड शी वाज सेक्सुअली बीइंग एक्सप्लॉइटेड at home by some relative, and she shared it with the teachers, and then the teacher handled it very, nicely. But that was case of one child. Here, as an HOS, it becomes a bigger responsibility. तो इसी पर्पज के लिए ये सब चीजें बनी हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे करना है। कुछ एक चीजें कॉमन सेंस की चीजें हैं जो पेपर नहीं होते, वहां पे आपने एज ए ह्यूमन बीइंग आपको इंटरवीन करिए, लेकिन सारी चीजें देखनी है आपको। सामाजिक मर्यादाएं भी देखनी है, परिवार की इज्जत भी देखनी है, बच्चे की मानसिकता भी देखनी है। तो कई बार हम सिर्फ पेपर वर्क करके समस्याओं और बढ़ा देते हैं। हमारा मकसद समस्या का समाधान करना होना चाहिए, जैसे भी हम कर सकते हैं। और हमारा मकसद इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हम और ट्रबल्स को बढ़ाएं। जब भी किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी आप लगाएं कि बच्चे को आप समझाएं, तो प्लीज इंश्योर करिए कि जो समझाने वाला व्यक्ति है, जो उनको गाइड कर रहा है, वो खुद समझदार हो और उसको ज्ञान हो। क्योंकि एवरीबडी इज नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। मेरी एक्सपर्टाइज लैंग्वेज टीचिंग में हो सकती है, आई एम द बेस्ट इन मैथमेटिक्स, बट आई मे नॉट बी गुड इन sex education, moral education. And if I start doing that, then I will be doing harm. I'm just spoiling things more. बच्चे की साइकोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती, मैं फिर भी उस पर अगर काम करूंगा तो मैं अपने लिए भी खतरनाक हूँ, बच्चे के लिए। तो इंश्योर करिए कि यहाँ पर जिसको भी जो भी व्यक्ति हैंडल करे वो अवेयर हो, वरना हमारे डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर्स हैं, ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ बच्चों की काउंसलिंग होती है। तो प्लीज गलत हाथों में बच्चों को नहीं दें। मिड डे मील कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिड डे मील भी बच्चों की सेफ्टी के लिए कई बार कुछ स्कूलों में इस तरह की घटनाएं आई हैं कि वो खाना खराब निकला, बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई, हॉस्पिटलाइज करने पड़े। तो अगर उन घटनाओं को आप देखेंगे तो वहां कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक होती है। मिड डे मील कमेटी जो बने वो सिंसियरली करे। कई बार ऐसा देखा गया है कि मिड डे मील इंचार्ज को हमने दे दिया, हमने ये समझ लिया कि बस वो उसकी जिम्मेदारी है, वो अपने आप देखेगा। प्लीज मानिए, एक व्यक्ति 500 बच्चों को खाना नहीं बंटवा सकता। यहाँ पर आप एक पूरी कमेटी बनाएं, वॉलंटियर्स बनाएं, टीचर्स की रोटेशन पर ड्यूटी लगाएं, जो बच्चों को खाना खाने की भी एक शिक्षा उनको दें। आप यकीन मानिए कि मैं जब देखता हूँ जो बच्चे बहुत ही गरीब घरों से आते हैं, उनको बैठ करके खाना भी नहीं आता। उनको अगर हम समझाएंगे, उनको हम सेंसिटाइज करेंगे, तो वो प्रॉपरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और जो डिफरेंट तरीके के जो रिस्क हैं हेल्थ से संबंधित वो कम हो जाते हैं। जितनी भी कमेटीज की रिकमेंडेशन है, गाइडलाइंस हैं, जनरली हम लोग अपनी गाइडलाइंस हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। हमें पूरी गाइडलाइंस हेडक्वार्टर से डिटेल्ड में सर्कुलर्स में आती हैं। अगर आप सर्कुलर पढ़ने की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो CTB ब्रांच से या स्कूल ब्रांच से इशू होते हैं, तो आपको बहुत सारा कुछ चीजें होती है। और बाकी ऑन द स्पॉट डिसीजन आपसे बेस्ट कोई नहीं ले सकता, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ द स्कूल। You know your children better than the policy makers. You know your children better than everybody who is giving you suggestions. मैं अपने स्कूल के हिसाब से अपना सिस्टम बनाऊंगा, आप अपने स्कूल के हिसाब से बनाएंगे, आपकी समस्याएं डिफरेंट हैं। लेकिन एक मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम खाना कई बार हम जस्ट ऐसे ही एज ए रूटीन आज ही टेस्ट कर लिया या उसमें आप बांट दीजिए, और वो वहां पर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में कई बार चूक जाते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा और गाइडलाइंस जितनी भी हैं जो आपको मिलती हैं उनको आप फॉलो कीजिए। नाउ दिस इज व्हाट दीज आर द एफर्ट्स
that I have discussed, and these efforts are to ensure कि कोई fatal injury ना हो। लेकिन इमरजेंसी कितनी भी आप फॉलो कर लीजिए, ये उन कारणों से हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमने सारी चीजें कर ली, हमने गटर भी बंद करा दिया, हमने ऑर्निबुसेस भी देख ली, हमने ट्री गार्ड भी हटा दिए, हमने कमेटीज भी बना दी, हमारा मेडिकल रूम भी फर्स्ट क्लास है, एवरीथिंग इज देयर, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जिनको ना हम फोरकास्ट कर सके, जिनके बारे में ना हमको प्लान बना सके, और सब कुछ करने के बाद ही दुर्घटना हो गई, जिसको हम इमरजेंसी कहेंगे। ये दुर्घटना अगर हो जाती है, ये वो समय है जहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, टीम की एकाग्रता भी चाहिए और एक्चुअल एक्शन भी चाहिए। और इसके लिए कोई सेट रूल नहीं है कि पहले हम सर्कुलर पढ़ें, सबसे पहले ये करो, फिर ये करो, पॉइंट नंबर 3 ये करो, पॉइंट नंबर 4 ये करो, ये सब काम नहीं आता। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सिचुएशन, ये सब काम आती है जब हमें इमरजेंसी हैंडल करनी है। लेकिन उसके लिए भी अगर हम पहले से कुछ चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अगर हमारे पास होती हैं, तो उस समय हमारे हाथ पैर नहीं फूलते और हम इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक चीजें, ये चेक पॉइंट्स हैं जो आप, मुझे नहीं लगता मैं कुछ नया आपको बता रहा हूं, माफ कीजिए, लेकिन ये सब आप जानते हैं पहले से, हम तो सिर्फ मिल करके रिविजन कर रहे हैं कि दीज आर द थिंग्स। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करेंगे स्कूल में अपने एज एन एचओएस कि क्या आपके पास एक डेडिकेटेड टीम है जो ट्रेंड हो, जो कम से कम 4 लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए जो फर्स्ट एड का ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें और बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जा सकें। तो इंश्योर कि आपके पास इस तरह की कोई ट्रेन टीम होनी चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि क्या आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल है। फर्स्ट एड बॉक्स जनरली हम मेडिकल रूम में रखते हैं, लेकिन मेडिकल रूम में ही फर्स्ट एड बॉक्स हो ये जरूरी नहीं। एक आपके पास इमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स भी अलग से होना चाहिए, जो प्रिंसिपल रूम में या 1-2 दूसरी जगह में होना चाहिए। तो कई बार ये संभावना हो सकती है कि जब इमरजेंसी हुई उस समय मेडिकल इंचार्ज नहीं आया, रूम लॉक है या वो वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आप प्लीज इंश्योर करिए कि फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास एक से ज्यादा जगह पर अवेलेबल हो। फिर आपके पास रूम, प्लेस, कोई मेडिकल रूम आपके स्कूल में क्या आपने ऐसी कोई जगह बना रखी है कि जहाँ पर किसी बच्चे को जब तक हॉस्पिटल ना जाए या सुविधा ना हो, बच्चा वहाँ पर लेट सके, आप उसको वहाँ पर फर्स्ट एड दे सके। तो यू हैव टू इंश्योर दैट। देन whether you have the phone number of any doctor who can come and phone call to your school, that is another thing that you have to ensure। आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए आसपास के किसी डॉक्टर का, कि अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी ऐसी आ गई है और हमें अभी समय लग रहा है बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने में, तो हम डॉक्टर को बुला सकते हैं। क्योंकि कुछ स्कूल की लोकेशन ऐसी हो सकती है कि वहां पर हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी बहुत दूरी पर हो और हमारे पास मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स के अलावा कुछ और ना हो, तो ऐसे में हमारे पास एक डॉक्टर होना चाहिए। देन हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए नियर बाय हॉस्पिटल की, जिसका फोन नंबर, पूरा डिटेल हमारे पास होना चाहिए कि जहां पर हम इमरजेंसी के केस में बच्चे को तुरंत वहां पर हम एडमिट करा सकें। जब दिस इज it is what you are supposed to prepare well in advance and to ensure to check all these things. They are with you, so they will help you in handling the emergency. Now, बच्चा घर से निकला, स्कूल पहुंच गया, हमने स्कूल प्रीमाइसेस को सेफ इंश्योर कर लिया, हमने ड्यूटी लगाई, हमने इमरजेंसी के लिए भी प्रिपेयर्ड। Now injury happens. What to do? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास टीम भी है, अब उसको ध्यान में रखते हुए वो मेरे पास सब, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं किसी भी इमरजेंसी के लिए। अब जब इमरजेंसी हो गई, अब मुझे क्या करना? तो सबसे पहले तो जो इंजर्ड बच्चा है उनको हम अपनी
उसमें तुरंत अपनी टीम को सौंपे जो डेडिकेटेड टीम है। तो जो हमारी डेडिकेटेड टीम है हम उसको एक्टिव कर दें और बच्चे को हम उसको हैंड ओवर कर दें। एंड यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप सबसे आगे रहेंगे, अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। बच्चे को तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स की मदद से उसको फर्स्ट एड दीजिए। फर्स्ट एड देने के लिए आपके पास एक ट्रेन्ड टीचर होता है। हर एक स्कूल में एक टीचर को फर्स्ट एड में ट्रेनिंग दी गई है, वो टीचर अवेलेबल हो। फर्स्ट एड उसी से दिलवाएं जो ट्रेंड हो, क्योंकि अनट्रेंड व्यक्ति के द्वारा दी गई फर्स्ट एड केस को और खराब कर सकती है। उसके बाद पेरेंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, दैट इज मैंडेटरी नेसेसरी। और पेरेंट्स को जब आप इन्फॉर्म करें तो इस तरीके से आप इन्फॉर्म करें कि पेरेंट्स भी नर्वस ना हो, उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और आराम से आप पेरेंट्स को बच्चे के बारे में बताएं कि आपके बच्चे को चोट लग गई, हम केयर कर रहे हैं, सारे स्टेप्स हम ले रहे हैं, और वो आपको उसको आप बुलाइए। क्योंकि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, और वो भी इमीडिएटली। देन बच्चे को नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, बच्चे को तुरंत वहां ले जाएं। इसमें आपकी मदद, वो जो टीम आपने बनाई थी 4 लोगों की, इसमें वो टीम मदद करेगी। इसकी आपने ड्यूटी लगाई थी कि वो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए इमीडिएटली। सबसे इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट इज, अपने सीनियर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। ये आपके लिए मैंडेटरी समझ लीजिए, बहुत जरूरी है कि मेरे स्कूल में आप इमीडिएटली आप अपने डीडी जोन को आप इमीडिएट करिए। फिर डीडी जोन आगे अपने सीनियर्स को आप इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी घटना हुई है। कई बार क्या होता है कि चीजें इस तरह घटना होती हैं, प्रेस में चली जाती हैं, इधर उधर फैल जाती हैं, व्हाट्सएप पे, मीडिया पे, लेकिन हमारे सीनियर्स को, हमारे डिपार्टमेंट को उस घटना का पता ही नहीं। इससे आपको हमेशा ये फायदा रहता है कि अगर आप अपने सीनियर्स को बताते हैं कि मेरे स्कूल में ये घटना हो गई है, तो बिलीव मी, हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सब पॉजिटिव अप्रोच के हैं, वो आपकी मदद करेंगे, और उनकी मदद से आप इसको भी हैंडल कर पाओगे, बच्चे की सुरक्षा भी करवा पाओगे। क्योंकि सबको मालूम है कि इमरजेंसी दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी, अगर आपकी केयरलेसनेस है, आपने ये स्टेप्स नहीं लिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यू आर केयरलेस। लेकिन अगर आपने सिंसियरली सारे स्टेप्स लिए हैं, आप पहले से तैयार हैं, और फिर भी अगर कुछ इधर उधर हो जाता है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अकेले की नहीं है। तो इसलिए अपनी चीज को, अपनी दुर्घटना को आप हमेशा अपने सीनियर्स को इमीडिएटली राइटिंग में, टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करिए, ताकि वो भी आपकी मदद कर सके। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एज ए टीचर हमें नहीं मालूम होता, हमें नहीं मालूम कि भाई कहाँ से कौन सी सुविधा मिल सकती है। तो इसमें हमारे सीनियर्स हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ये खास बात है कि यहाँ पर हर ऑफिसर पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए आपकी मदद करते हैं। और लेकिन अगर आप उनको बताओगे ही नहीं, आप उनसे कोई चीज छुपाओगे, तो फिर उनके लिए भी आपकी मदद करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बच्चे को हम जब चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, तो कई बार हम उसको अपनी जिम्मेदारी वहां पर खत्म मान लेते हैं कि भाई हमने फर्स्ट एड दे दिया, पेरेंट्स को बुला लिया, पेरेंट्स बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। लेकिन वहां पर उसको पेरेंट्स इतना नर्वस होता है, इतना परेशान होता है, उसको मालूम नहीं होता कि वहां की प्रोसीजर क्या है, वो कर भी नहीं पाता। तो ये अच्छा रहता है कि अगर हम एक टीचर को डिप्यूट कर दें कि वो पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में जाए, और वहां पर जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा करने में वो मदद करे। तो एक टीचर को आप जरूर बच्चे के साथ जाएं, और उस फैमिली के साथ आप अपने आप को टच में रखिएगा। बच्चे की कंडीशन पूछिए, उसके हालचाल पूछिए, और एक जितनी भी आपसे बन सकता है, अगर पर्सनली इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, सो यू शुड विजिट पर्सनली ऑल्सो टू द फैमिली ऑफ द चाइल्ड। सो कीप इन टच विद द चाइल्ड इवन आफ्टर his recovery, his discharge from the hospital.
जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं आप वो करिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं मिलती या वो प्राइवेटली अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको वहां पर दिक्कत आती है, तो वहां पर भी आप देखिए कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बच्चे की हम क्या मदद कर सकते हैं। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप वो साथ अब अपने आप ये सोचिए कि भाई जो बच्चा जिसको इंजरी हुई है वो मेरा अपना बच्चा है, हम सबके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम अगर अपने बच्चे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, अगर हम ये सोचेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपने स्कूल में वो सारे स्टेप्स ले सकते हैं, अगर बच्चे को हम अपना बच्चा समझ करके देखेंगे। सिर्फ कागजी कार्यवाही से नहीं बचता, क्योंकि हर बच्चा अपने परिवार का एक सपना है, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो इस बात को ध्यान में रखते जब हम काम करते हैं तो हमें डिपार्टमेंट भी मदद करता है और भगवान भी मदद करता है और सिस्टम भी हमें पूरा मदद मिलती है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑनरेबल श्री मनीष सिसोदिया जी का एक ही कहना है कि वी हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन, but this education should be with human touch. So this is what now we have this circular which has certain do's and don'ts and what should be done in the school. So these are the points which you can talk about. You can just read it. So this is what I had to share with you. एक पॉइंट भी छोटा सा मैं, हालांकि इसमें आपका स्लाइड में नहीं मिलेगा, आई वुड लाइक टू क्लोज, आई हैव टाइम। सो साइबर सेफ्टी पर भी आपने बहुत काम करना है अभी, क्योंकि हमारी जितनी भी क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चों के पास अब स्मार्टफोन है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ फ्रॉडस्टर्स जो हैं इन बच्चों का मिसयूज करते हैं, वो कोई भी चीज इनको पोस्ट कर देते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट एक मीडिया पे शुरू हुआ था कि दिल्ली सरकार सभी को फ्री लैपटॉप्स दे रही है, तो जिसको चाहिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और फिर उस लिंक पर एक लिंक दिया हुआ था, उस लिंक पर लोग बच्चों ने क्लिक किया, अपना डिटेल दे दिया और थोड़ी देर में उनके अकाउंट्स में से पैसे लोगों ने निकाल लिए। तो कुछ इंसिडेंट्स इस तरह की हुई। तो बच्चों को आप ये एजुकेट करिए कि किसी स्कूल के अलावा कोई भी लिंक अगर आपको भेजा जाता है तो आप उसको ना खोलें। कुछ बच्चे डिफरेंट तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, उनको तो वो कहीं वो नहीं कर रहे हैं, किसी का विक्टिम तो नहीं बन रहे हैं, कोई उनको किसी दूसरी तरीके से ट्रैप तो नहीं कर रहा है। ये भी बच्चों को आप बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपके पास साइबर सेफ्टी की क्लासेस भी होती हैं, आपके पास रिसोर्स पर्सन्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किस चीज का सोशल मीडिया को कैसे यूज करना चाहिए ताकि वो आपका सिक्योरिटी थ्रेट ना बने। कुछ गेम्स इस तरह के आ रहे हैं जो बच्चों की मानसिकता को प्रभावित कर रहे हैं, उनको भी आप उनको एजुकेशन दीजिए। किस तरीके से हम बच्चों को इनसे भी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इनको हम कैसे रोक सकते हैं, तो इससे संबंधित भी आप अपने स्कूल में लेक्चर भी रखवा सकते हैं। आप भी बच्चों को समझा सकते हैं, आप आईटी बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है जो बच्चों को हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन so then we can discuss that. Sir, am I audible to you, sir? Yeah. Sir, I want to know one thing, sir. Sir, for an example, like, but even I had also experienced certain things in the school when there are two group of the students actually, and they are eating in the school and they are violent. So they are fighting in the ground of the school, and in that situation, the teacher enters into their dispute. And if anything happens wrong with if any injury taking place there with the teacher, this happens in an experience actually, and see the opposite group always allies to the teacher that he is supporting that group only, who is the violent one.
So I want to know that what will be the role of the HOS and the teachers, because the next day they will come along with the FIR lodged against the teacher also. So what does a teacher will do in certain conditions, sir? Even if he is involved in the fighting of the students taking place in the school, so otherwise let the fight be done and later on the FIR may be lodged against the violent group. Some students, sir, they are bringing the outsider also into the premises of the school, and they are becoming so violent. And see if the HOS and the teachers is entering into their fights. So unnecessarily, sir, they will know, being the government employees, sir, if the FIR is also lodged against the teachers and the HOS. So how you will advise, sir, so that we can also take our own safety measures also in that condition, sir. That only I want. देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्कूल के अंदर फाइट होती है और उस स्कूल के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, जी सर, है ना, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि बाहर से कोई आकर के आपके स्कूल में बच्चों से लड़ रहा है, बच्चे लेकर के आपके यहाँ दूसरे वाला केस हुआ ना? जी सर। क्या मतलब बाहर के बच्चे आते हैं और वो फाइट करते हैं इस तरह का? एक ग्रुप जो है आउटसाइडर लेकर के ही बच्चों को पिटवा रहा है दूसरे ग्रुप को। हाँ, वो तो सब मैंने बताया ना कि वो फोन ही उनको करते हैं, वो ग्रुप आज ही कर लेते हैं। तो सर इसमें तो देखिए, जहां तक सवाल है FIR का, FIR इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि बच्चे सारे ये अभी कम उम्र के बच्चे हैं। इनको अगर हम यहाँ पर इन चीजों में पड़ जाएंगे तो उनकी फ्यूचर मतलब सेफ नहीं है और वो सुधरेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो आप जो स्कूल के, तो मेरी अपनी एडवाइस है, जैसे क्योंकि ये सब कॉमन प्रॉब्लम ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स, लेकिन हमने कैसे इसको कम किया है कि हम जैसे मान लीजिए स्कूल के ही 2 ग्रुप्स हैं और ये ग्रुप्स भी जब बनते हैं, वो बनते हैं कि ये इस गांव का है, ये इस गांव का है, या ये इस एरिया का है, ये इस एरिया का। तो ऐसे में आप SMC के मेंबर्स की मदद लीजिए। उन बच्चों के, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर गांव है, मान मैं कहता हूँ गढ़ी गांव, अब आपको लगता है कि गढ़ी गांव के 10 बच्चे ऐसे हैं कि जिस तरह के उन्होंने ग्रुप बना रखा है, तो आप गढ़ी गांव में वहाँ के अच्छे जो लोग हैं, जिनके लोग इज्जत करते हैं, उनको आप इन्वॉल्व कीजिए, उनकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन कीजिए। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये मैं समझता हूँ। तो आइडियलिस्टिक बातें भी कई बार हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकली मुश्किल तो है, लेकिन आप प्रयास करके देखिए। मैंने किया है और मुझे सफलता मिली। आज उन्हीं बच्चों को, चूंकि जो ग्रुप बनते हैं वो हमेशा एक लोकेलिटी के बनते हैं, वहां उनसे आप इंटरेक्शन कीजिए, पर्सनली विजिट कीजिए, बच्चों के पेरेंट्स से बात करिए, लेकिन करिए इस तरीके से कि बच्चे को ये ना लगे ये मुझे मतलब एक तरीके से गलत कह रहे हैं। बच्चे को आप कन्विंस करिए, उसको बताइए इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अगर एक बार बच्चे को आप ये कम्युनिकेट कर दें कि भाई देखो, हमारा तो काम ये है कि हमने तो फोन कर देना है, पुलिस को लड़ोगे तो पुलिस थाने में तुम जाओगे, तुम्हारे नाम से एक FIR दर्ज हो जाएगी, केस चलता रहेगा और तुम्हें एक BC की कैटेगरी में रख देंगे, बैड कैरेक्टर। कल जब तुम पासपोर्ट बनवाने जाओगे, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, तो तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आप BC की कैटेगरी में, आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो एक बार अगर आप इस झमेले में पड़ गए तो जिंदगी आपकी खराब है। आप कितना भी पढ़ लिख लीजिएगा, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप कितना भी पढ़ लिख लीजिएगा, आपको कहीं से भी लोन भी नहीं मिलेगा। इस तरह की चीजें बच्चों को आप बताओगे मेरे पास, और जब ये आप शेयर करेंगे, और बल्कि इसके लिए आप ना अपने मैंने क्या किया, मैंने जो लॉयर थे उनको अपने स्कूल में बुलाया और उनको बताया कि तुम ये करोगे तो ये धारा लगेगी, उसमें ये रिपरकशंस हैं। चूंकि आपकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, आप जुवेनाइल्स की कैटेगरी में आएंगे, और वहां पर फिर क्या होता है उसको उनको एग्जाम्पल्स दीजिए, वहीं से एक आदमी को बुला लीजिए। तो ये एक उनको एक तरह से हिट करने का तरीका है, क्योंकि जब तक आप उनके बिहेवियर को नहीं बदलोगे, एजुकेशन मीन्स व्हाट, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बच्चे को नहीं पता कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो नुकसान हो जाएगा, तो मुझे नुकसान कर रहा है। आप उसको बता दो कि तुम जो, हमारे पास तो देखो बेटा सीधा सा है, तुम लड़ाई करोगे, दंगा करोगे, हम पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे कानूनन, और फिर उसका भुगतान तुमने करना है। तो अगर इसके लिए तैयार हो तो बताओ, और वरना भैया आप अपने आप पे कंट्रोल करो, और ये सबको इकट्ठे करके बुलाओ, उनको बताओ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो काम करता है। और फिर भी आपको अगर ये लगता है कि नहीं, बच्चे बैकग्राउंड ही ऐसी है कि बच्चे को आप नहीं सुधार सकते, तो फिर सर हमारे पास तो वो रास्ता नहीं होता कि फिर हम जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी फिर हमें मदद लेनी चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली इस बात को महसूस करता हूँ
कि स्कूल टाइम में हम कोई ऐसा एक्शन ना लें कि जिसका बच्चे को आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद भुगतान करना पड़े। बच्चों क्योंकि का अभी तो सर वो ना समझ है, और हमारी पेशेंस और हमारा जो हमारी कम्युनिटी जो है टीचिंग की, वो बच्चों के बिहेवियर को ठीक करने की है, ना कि उनको फ्यूचर क्रिमिनल बनाने। क्योंकि एक बार हमने स्कूल से निकाल लिया तो स्कूल का तो हो गया, लेकिन सोसाइटी के लिए तो एक खतरा बन गया ना। सर आई मैं थिंक मैं आई हैव बीन एबल ये टू नहीं कह रहा हूँ कम्युनिकेट। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ऑडिबल टू यू सर, एम आई ऑडिबल टू यू सर? यस यस यस। मैंने सर उनके खिलाफ हम नहीं करा रहे, मैं आई जस्ट वांट टू नो कि कहीं कहीं जो है ना, आपने भी देखा होगा एचओएस की, वो टीचर्स और एचओएस के खिलाफ भी एफआईआर कराते हैं सर, गार्जियंस। कई बार बच्चों का, जब बच्चों के साथ स्कूल में झगड़ा हो जाता है तो टीचर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सर, छुटाने के समझ लो, या समझ लो कि उनको वायलेंट ना बने। तो उस कंडीशंस में जब कई बार वो ऐसा केस हुआ है कि सर टीचर्स के खिलाफ उन्होंने करा दिया एफआईआर में, उस मतलब कंडीशंस में। प्रिंसिपल ने टीचर के खिलाफ करा दिया? प्रिंसिपल ने नहीं कराया सर, प्रिंसिपल हाँ। तो टीचर्स तो एक है सर वो, लेकिन बाहर के लोगों ने ये एलिज किया कि हमारा जो ये ग्रुप है, इसको तुम्हारे ग्रुप टीचर सपोर्ट करते हैं, या एचओएस ने उनको क्यों नहीं कहा, इसलिए वो इसमें जो है ना टीचर्स के खिलाफ एफआईआर हो जाती है सर। एक केस ऐसा हुआ था सर, तो उसमें हमें ये बचाव बताइए सर कि अगर हमारे खिलाफ हो जाते हैं कई बार, तो हमें क्या बचाव करना चाहिए? एक सेफ्टी में जब हम इन्वॉल्व होंगे सर, सिक्योरिटी उनको देंगे, और सिक्योरिटी में वो झगड़ा कर रहे हैं बच्चे का, एक बार जो आपने एक स्पेशल ग्रुप बताया, कमेटी अगर जाती है वहां, मान लो कि वो झगड़ा कर रहे हैं गेट पे खड़े होकर के, तो उस कंडीशन में अगर वो मान लो कि झगड़े में इन्वॉल्व हो गया और कोई इंजरी हो गई, तो वो तो टीचर्स को भी एफआईआर कराते हैं सर, कई जगह तो ऐसे भी हैं। तो उसमें टीचर्स और हम कैसे बचाव करें सर, वो मैं नहीं पूछना तो एफआईआर तो बिना किसी कारण के ऐसे भी तो ऐसे ही थोड़ा ही हो जाएगी कि वो चला जाएगा, पुलिस वाला एफआईआर कर देगा, जब तक वो तो कॉग्निजेंस लेगा ना चलो तो हुआ क्या। नहीं, वो तो सर इंजरी तो हो गई ना बच्चों में, आपस में बच्चों में नहीं, आप। हमारा तो काम उतना, जो उस समय इंजरी हुई, प्रिंसिपल ने जो करना था उसने पूरे स्टेप्स लिए, जी सर। और उसमें उसकी कहीं चूक नहीं, इससे ज्यादा प्रिंसिपल और क्या कर सकता है। बाकी अगर पेरेंट कोई एफआईआर दर्ज करता है तो एफआईआर दर्ज करने वाले के सामने भी तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो मेरे ख्याल से तो मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है कि भाई एफआईआर कर दे तो क्या होगा, तो इसमें मैं नहीं सर आपको एनलाइटन कर पाऊंगा। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? आपको घटना शेयर करना चाहें एज ए क्लास टीचर, मतलब एज ए सब्जेक्ट टीचर में? हेलो सर। आप लोगों ने से मैक्सिमम ने ज्वाइन हेलो कर सर। लिया है ना? जी हेलो सर, इट्स डॉक्टर पूरन सिंह। जी पूरन सिंह जी। सर ये साइबर सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि हम कैसे मतलब इंश्योर करें बच्चे के सबसे लेवल पहले तो अपने आप को ट्रेंड करें हम, क्योंकि हम लोग खुद भी अभी इतने ट्रेंड नहीं है, हम लोगों के साथ भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। सर साइबर सेफ्टी का एक ही तरीका है कि जो आपके आईटी होते हैं ना, जी। उनके बच्चों के साथ फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन करवाएं। कि भाई बच्चों को देखो, आज के दौर में बच्चे को हम रोक कुछ नहीं सकते जब तक बच्चा कन्विंस नहीं होता। आप कितना भी कह लें कि ये मत करना ये मत करना, पर बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो आपकी बात को मना भी नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो वो चाहेंगे। तो ऐसे में सिर्फ एक ही है कि हम बच्चे को उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों अच्छे से समझा दें कि बेटा ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, आप उसको एग्जाम्पल दें ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। तो इस तरह की शेयरिंग अगर आप करेंगे तो बच्चे को कहीं ना कहीं समझ में आता है। जहां पर साइबर क्राइम भी दो तरह के, मतलब जो विक्टिम बनते हैं, हम कई बार इसलिए विक्टिम बन जाते हैं कि हमें खुद ज्ञान नहीं होता। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, ऐसे बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि बड़े बड़े ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, वो भी बेवकूफ बन करके अपने पैसे कमा देते हैं। कोई फोन आएगा, वो उसे डिटेल मांगेगा कि भाई अपना पैन कार्ड बताओ, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, और फिर वो प्रोडक्ट से उनको लूट लेते हैं। तो कई बार हम अज्ञानता के कारण उनका विक्टिम बनते हैं। एक तो ये रीजन होता है। कुछ लोग बच्चे जानबूझ करके क्राइम करते हैं,
आपने एग्जाम्पल बहुत सारी खबर सुनी होगी कि जहां पर कुछ बच्चों ने अपने टीचर की फोटो पोस्ट कर दी या अपने किसी क्लासमेट की फोटो कहीं पोस्ट कर दी, कुछ बहुत वल्गर फिल्में पोस्ट कर दी। तो ये सब चीजें आप बच्चों को सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं। और जहां तक आप एज एन HOS, क्योंकि आप भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप भी उसको काम कर रहे हैं, आपको भी इंश्योर करना है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपके डाटा चोरी तो नहीं कोई कर रहा है। कई बार इस तरह के सर्कुलर्स आते हैं कि हम ये कंपटीशन हो कर रहे हैं और आपके स्कूल में भेज रहे हैं और आप हमें ये डाटा शेयर कर दीजिए। तो आपका कंसर्न, उससे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो एक्चुअल सोसाइटी में हो रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो यहाँ पर साइबर सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स टॉपिक होना चाहिए कि जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। क्या हमारा डाटा तो नहीं कोई चोरी कर रहा है? क्या हमारे बच्चों को कोई डाटा को कमर्शियल यूज तो नहीं कर रहा है? या कोई ऐसी साइट तो नहीं ओपन कर दी जिसमें बच्चों से पार्टिसिपेट करवा रहे हैं? तो वहां पर आपको खुद अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि दैट इज सेफ्टी नॉट ओनली ऑफ द चिल्ड्रन बट दैट इज योर सेफ्टी ऑल्सो। तो ये कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए आपका जेम के थ्रू में परचेज करना है, तो हमारा जेम का नंबर हमारे अलावा सबके पास होता है, स्कूल भी। और कई बार मान लीजिए मुझे मेल भेजनी है तो मेरी मेल आईडी का पासवर्ड प्रिंसिपल को छोड़ करके पूरे स्टाफ को पता होता है। तो वहां पर आप देखिए कि कहीं वहां पर आपने अपनी सेफ्टी को ध्यान रखना है। क्योंकि वहां बच्चे को तो हमने सिर्फ अवेयर कर दिया, बेटा ये गेम नहीं खेलना, आप इंस्टाग्राम पे जब कर दिए पोस्ट नहीं करना, ये चीजें आप उनको बताओ। कई बार क्या होता है कि बच्चों को यूज करके दूसरे लोगों का मिसयूज कर लेते हैं। हमें एज एन HOS, जो साइबर सेफ्टी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो एज एन HOS, एज ए न्यूली, बिकॉज बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिनका एक्सपीरियंस तो 15-20 साल है एंड दे हैड बीन द एक्सेलेंट इन देयर ओन फील्ड, बट दिस इज अ न्यू रोल। अभी मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता DDO का काम क्या होता है, मुझे अकाउंट्स नहीं आता, मुझे शोकोज लिखना नहीं आता। आप इंग्लिश के बहुत बढ़िया टीचर हैं, बट यू हैव रिटन अ लॉट ऑफ पोएम्स, नोट्स एंड ऑल, लेकिन आपको मान लीजिए शोकोज लिखने के लिए कह दिया जाए, बाय गारंटी यू कैन नॉट राइट। तो यू हैव टू लर्न दैट। सिमिलरली हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। आज का जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं या स्मार्टफोन है, कई बार हम हैंडल नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों की मदद लेते हैं। कई बार अगर मुझे कोई चीज व्हाट्सएप पे भेजनी है या कोई सूचना भेजनी है डिपार्टमेंट में, तो कहीं का कहीं भेज देते हैं। तो वहां पर आप अपनी भी ट्रेनिंग लीजिए। दैट वुड बी साइबर सेफ्टी फॉर यू फ्रॉम स्कूल पॉइंट एंगल से, रिपोर्ट सेंडिंग एंगल से। आपका कंप्यूटर में जितनी इंफॉर्मेशन है, प्लीज मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ट्रस्ट मत करिए, आप ट्रस्ट करिए, अपने स्टाफ पर भी ट्रस्ट करिए, अपने IT पर भी ट्रस्ट करिए, लेकिन प्लीज इंश्योर कि कहीं आपके डाटा का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको नहीं पता, आपके अपना एक पर्सनल ID है, आपके पर्सनल ID से किसी को भी आपका पासवर्ड पता लग गया तो आपको तो पता भी नहीं है, आपके नाम से उसने ऑर्डर कर दिया, किसी का ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आपने उसको प्रूव कर दिया। तो दीज आर ऑल्सो द पॉइंट विच दोज हु आर न्यू, तो आप उसको सीखिए। और सीखने का माध्यम अपने IT से सीख सकते हैं, अपने घर वालों से सीखते हैं, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा आप दूसरे को चेक नहीं कर सकते। और अब ये मान के चलिए कि आपका जो ये प्रमोशन हुआ है, जो आपको जिम्मेदारी मिली है, ये उस दौर की जिम्मेदारी मिली है जो जहां सब कुछ नया है, हालात भी नए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमने कभी सुनी भी नहीं थी, हमें वो भी कंडक्ट करना है, ऑनलाइन फाइलिंग, ऑनलाइन सिग्नेचर, तो हमारे लिए ये सब नई चीजें हैं। और जब कोई नई चीज हम देखते हैं तो उसके हमें नुकसान भी पता होने चाहिए, और अपने आप को इक्विप करना, अपने आप को एम्पावर करना, लर्निंग करना, मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दैट इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, दैट यू शुड इंश्योर कि भाई वही जैसे हमने स्कूल पे वर्कआउट किया, आप गूगल करिए, आप देखो कि भाई साइबर क्राइम क्या क्या स्कूल में, साइबर क्राइम क्या क्या हो सकता है, मेक ए लिस्ट।
फिर वहीं से आप निकाल लीजिए कि किसके सजेशन की हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग टैकल्ड इन अदर कंट्रीज, उस पर आपको मटेरियल मिल जाएगा। फिर उसको अपने स्कूल, मैंने आपको बताया कि आप में से हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल एंटिटी है। मेरे स्कूल की प्रॉब्लम आपके स्कूल की प्रॉब्लम कॉमन नहीं हो सकती। तो वहां पर जो भी आपने डिसीजन लेना है, जो पॉलिसी बनानी है, वो आपने अपने विवेक से बनानी है। रूल्स भी देखने हैं, रूल बुक क्या है वो भी देखना है, और आपका अपना जो विवेक है वो भी आपने देखना है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? थैंक्स सर। शुड आई सर? हाँ जी प्लीज बताइए। सर मान लीजिए रेनी सीजन में बिल्डिंग के किसी पार्ट में करंट आ रहा है, हमने जी। लोकल टेक्नीशियन को दिखा लिया, लेकिन ये फाइंड आउट नहीं हो पा रहा कि करंट किस वजह से आ रहा है। अब हमने पीडब्ल्यूडी को भी इन्फॉर्म किया, उसके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि ये प्रॉब्लम है, बट इमीडिएटली उनका रिस्पॉन्ड नहीं। अब उतने टाइम पार्ट में विद फॉर 1 डे 2 डे उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, तब तक बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए उनको वहां बिठाना ठीक नहीं है, लेकिन इतना स्पेस नहीं है कि उनको कहीं और बिठाया जा सके। तो क्या किया जाए इस केस में? प्रैक्टिकली तो सर इसमें ऐसा ही होता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, एंड वी आर नॉट आई मीन एन अथॉरिटी टू द फाइनल, इमीडिएटली अपने सीनियर को फोन करिए। सीनियर को आप बताइए स्कूल में इस समय ऐसा माहौल है कि जिसमें हम क्लास नहीं कर सकते और बच्चों को रिस्की है। तो उसमें जनरली आपको हायर अथॉरिटी ऑर्डर दे देती है कि ठीक है, जब तक नहीं होता आप या तो, अगर वो सीरियसनेस देखते हैं प्रॉब्लम की, एंड देन दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। अपने आप ऊपर आप मत रखिए, आपका जो काम है आप वो पक्का रखिए, उसके ऊपर आप इमीडिएटली अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, उनसे इंस्ट्रक्शंस लीजिए और तब आप उसको करिए। क्योंकि अगर मुझे ये लग रहा है कि भाई पूरी बिल्डिंग में करंट आ रहा है और वो ठीक नहीं हो सकता, तो मैं अपने बच्चों को रिस्क पे नहीं रख सकता। तो उस समय मेरा विवेक ये रहेगा कि मैं क्लासेस ऑफ कर दूं, भैया सब बच्चे ग्राउंड में आ जाओ, कोई पढ़ाई नहीं है, और फिर फर्दर इंस्ट्रक्शंस लीजिए, फिर जैसा आपको आदेश मिले आप उसको पालन कीजिए। लेकिन अपनी तरफ से कोई रिस्क मत लीजिए कि लोकल आपने इलेक्ट्रीशियन बुला लिया, पता चला वो इलेक्ट्रीशियन कोई करंट लग गया। तो हमारे पास ऑथराइज्ड पीपल जो लोग हैं आप उनको करिए, जब तक उसका नहीं होता तब तक आप क्लासेस को आप सस्पेंड करिए, या जैसा भी आपके सीनियर्स जो आपको आदेश देंगे वो आप करिए। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। जी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल मुझे सुन पा रहे हैं। जी हाँ जी सर, मुझे ये पूछना, अगर इन केस अगर किसी बच्चे को इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो जी। ऐसे में जो वहाँ पेमेंट करनी होगी वो किस तरीके से की जाएगी, कौन से फंड से की जाएगी? देखो इसमें जनरली हम जब छोटा मोटा जो फंड होता है वो बॉयज फंड से कर देते हैं, और अगर बहुत ज्यादा खर्चा होता है तो फिर वो या तो एसएमसी की मदद लेते हैं। फंड्स तो कहीं ना कहीं से जनरली बॉयज फंड से हम करते हैं इस तरह की पेमेंट्स। लेकिन अभी तो बॉयज फंड है नहीं ना। हाँ वही है, मैं वो समझ सकता हूँ। उस समय तो मैम करके फिर वही है कि या तो स्पेशल फिर मांगा जाए फंड का, चूंकि ऐसा कोई ऐसा प्रावधान तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ को तो यही कहना है कि आप उसको इमीडिएटली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में ले जाइए, और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में कोई पैसे लगते नहीं है। अगर और प्राइवेट में यू आर लेके राइट, जाना यू आर राइट कि वहां पर कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है। और अगर मान लीजिए प्राइवेट मतलब वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही नहीं, या इतनी दूरी पर है कि जहां पर वो पहुंच नहीं सकते, तो फिर ये डिसीजन हमें लेना होता है। तो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल होगा वो एज पर रूल्स वो एडमिट करते हैं इमरजेंसी में बच्चे को, मना वो भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर कुछ केसेस में गवर्नमेंट पेमेंट कर देती है, फिर वो नहीं कर सकते जी मना तो नहीं कर सकते, लेकिन पेमेंट वाला जब सवाल आता है, क्योंकि प्राइवेट के चार्जेस वगैरह तो बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं, यू आर राइट, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वहां पर। लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के हैं कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं तो वो आपको नॉमिनल चार्ज करते हैं, और फिर उसका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती है। और अदरवाइज मतलब ऐसा मौका कभी हमें तो नहीं मिला इस तरह का करने का। लेकिन थैंक यू सर, थैंक मतलब यू। वही है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, उस समय तो हमारा मैम एक पर्पस होना चाहिए जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि बच्चे की जान बचनी चाहिए। कागजी कार्यवाही ये सब चीजें होती रहती हैं मैम, जिसका बच्चा चला गया
वो वापस नहीं है। चूंकि आप एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम कर रही हैं, इसलिए आपको हर जगह से मदद मिलेगी। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मैडम, मैं जिस स्कूल में हूँ, कि अगर बच्चे को चोट लग गई, अगर उसको 20-20 हजार रुपए का भी हुआ, तो मेरे अपने स्टाफ ने कंट्रीब्यूट करके उसको दिया। और ऐसे ऐसी फैमिली के बच्चे जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो हमने कभी वेट नहीं किया। हमें पता है कि वो हॉस्पिटल जाएगा, वहां उसको नहीं जाता। मेरे 2 टीचर्स हैं, दोनों के दोनों टीचर्स इमीडिएटली वहां हॉस्पिटल में पूरी कार्यवाही करवाते हैं, फॉर्म भरना, डॉक्टर्स को लाना। तो ये तो फिर एक, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होती है। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम यहाँ चीजें नहीं बना रहे, हम यहाँ इंसान बना रहे हैं। और वहां पर फिर ये इफ्स एंड बट्स और ये जो चीजें, ये कोई मायने नहीं। फाइलें हैं, बनती रहेंगी। अगर 2 पैसे मुझे जेब से भी देने पड़ गए और किसी की जान बच गई, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा पुण्य का काम कोई है। बिल्कुल। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये सब अपनी अपनी सोच है। मुझे लग रहा है कि बहुत आसान है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हर स्कूल में ऐसा स्टाफ भी तो नहीं होता। वैसे एग्जाम्पल्स भी है मैडम। ये तो वो हुआ कि बच्चे को चोट लग गई, तो टीचर्स जो हैं वो बच्चे की मदद करने की बजाय प्रिंसिपल की फोटो खींच रहे हैं, ताकि वो उसको पता शिकायत कर सके, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। तो सर सभी तरह के लोग होते हैं ना वो बस हमारे इसलिए बीच मैंने में। बताया ना कि यहाँ तो जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि एजुकेशन विद ह्यूमन टच और ये मेरा अपना बच्चा है, जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी, फिर ये रूल्स रेगुलेशन, हम सब लोग समझदार हैं, मेच्योर हैं, वो कम्युनिटी है समाज की कि जो मतलब सब कुछ देने को तैयार होता है टीचर। तो हमें रूल्स की जरूरत नहीं होती। हमें तो ये देखना है कि भाई रूल्स को भी फॉलो करना है और इस चीज को भी करना है। इसके लिए कोई, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उसकी जरूरत है। ये तो अपने अपनी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, RHOS पे डिपेंड। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी लीगली और ऑफिशियली हमारे पास इस तरह के पेमेंट्स का कोई प्रावधान नहीं। ओके। हेलो सर, मेरी जी। वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी बिल्कुल। सर, जैसे स्कूल के प्रेमाइसेस में छत पर एक पेड़ आधा गिर जाता है, अब उस जी आधे पेड़ को हटाने के लिए रिस्की हो जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखना पड़ता है, फिर जी उनसे ऑर्डर लेना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो जी और क्या तरीका हो सकता है? मैम, वो उसमें ना मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कई बार अच्छाई करते हुए ना बुराई गले पड़ जाती है। अगर आप अपने लेवल पे कराएंगे किसी बाहर के आदमी को और उसको ही चोट लग गई, तो वो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें तो मैम हमें जो सिविक एजेंसीज हैं, जो प्रोसीजर है, वही फॉलो करना है। क्योंकि थैंक मैं यू ये सर। सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसको किसी बाहर के आदमी से रिमूव करा लो, तो उसमें रिस्क है। तो बाहर का आदमी आपने मान लीजिए एंगेज किया और खुदा न खास्ता उसी को चोट लग गई। क्योंकि एक जगह ऐसा हुआ था कि उनका सीवर जो था वो ब्लॉक हो गया, तो वो पानी ओवरफ्लो कर रहा था। तो उन्होंने किसी बाहर के, किसी जो ये लेबर काम करती है, जो सीवर सफाई का काम करते हैं, उनको बुला लिया। उसको करते हुए वो आदमी बेहोश हो गया। तो वहां उसकी जान को लाले पड़ गए कि भाई तुमने इस अनऑथराइज आदमी को क्यों बुलाया। अगर वो मर जाता तो उसको कौन कंपनसेट करता। जब हमारे पास ऑथराइज डिपार्टमेंट है तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं की। तो ऐसे में मैडम मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारी ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो काम आप उन्हीं से करें। देर हो सकती है, अगर आप फॉलो करेंगे तो, क्योंकि आपके भी कानूनन हाथ बंधे हुए हैं, और जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है वो सोच समझ के ही बनाई है। हमसे बड़े विद्वान लोग हैं जिन्होंने ये सब गाइडलाइंस बनाई है, तो हमें तो उनको फॉलो करना है। यहाँ पर हम अपनी डिस्क्रिशन ना यूज करें, और बस ये इंश्योर कर लें कि वो, और जब आप इसकी सीरियसनेस बताएंगे ना हायर एजेंसी को, तो वो क्विक एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा कि वो हमेशा ही लेट होते हैं। अगर जब हम ये बताएंगे कि पेड़ गिर गया और बच्चों के लिए थ्रेट है, बस आपने फॉलो अप करना है। कैमरा थैंक यू भी। सर। जी मैम। हेलो, जी जी। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। अच्छा, हाँ नमस्कार जी, आ रही है। सर। स्कूल आप जो अपना वो स्पीकर जरा चेंज कर लीजिए। हाँ जी।
इलेक्ट्रिशियन और सफाई वाला रहा हूँ सर कि क्या हमारे पास स्कूल में जी। ऑथेंटिक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या सफाई वाला, नाली वाला है? हेलो। हमारे स्कूलों में हाँ नहीं, तो हमारे स्कूलों में ये जो सब चीजें होती हैं इंडिविजुअलाइज तो होती ही नहीं। आपके पास स्टेट मैनेजर है, स्टेट मैनेजर फॉलोइंग प्रोसीजर वो कराते हैं। आप मेंटेनेंस के लिए आप छोटे छोटे लोगों को बुलाते हैं ना। हाँ, स्टेट मैनेजर तो कराते हैं, लेकिन वो किसको बुलाएंगे? इसके लिए कोई रूल तो है नहीं कि मतलब नहीं, किसको उनके पास वो बुलाएंगे? रिसोर्स उनके पास होने चाहिए, ऑथराइज अच्छा पर्सन होना चाहिए। कुछ लोग डीलर के थ्रू कराते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट लेबर वगैरह बना देते हैं जिनकी बिलिंग वगैरह तो होती है। स्टेट मैनेजर डायरेक्ट मंगा सकता है लेबर ना? नहीं, विद योर परमिशन स्टेट मैनेजर विल ओनली टेल यू। अच्छा स्टेट मैनेजर आपको बताएगा जी कल मैं राउंड ले रहा था और मैंने वहां पर सीवर खुला हुआ देखा, तो कृपया जी इसको सर। ठीक कराने की अनुमति दें। आप जी स्टेट मैनेजर को लिख के देंगे, आप प्लीज अरेंज इट। स्टेट मैनेजर फिर रिसोर्सेज आपको बताएगा कि सर ये है, ये इतने पैसे ले रहा है, इतने पैसे ले रहा है। फिर आपकी कमेटी, इंटरनल कमेटी जो है वो उसको अप्रूव करेगी। एसएमसी में आप उसको अप्रूव करवाओगे, तब आप उससे काम करवाओगे। तो वो लोग अनऑथराइज्ड बात तो ये है कि ऑथराइज पर्सन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीवर क्लीन कराना है या वाटर टैंक क्लीन कराना है, तो हाँ कौन है? ऑथराइज एजेंसीज वो कौन सी तो हैं? वो तो दोनों चीजें हो गई ना सर। देखो, ऑथराइज तो आपकी, अगर आपका स्कूल पीडब्ल्यूडी ने टेक ओवर किया हुआ है तो पीडब्ल्यूडी का पूरा डिपार्टमेंट है। डीटीडीसी ने किया है तो उनका पूरा डिपार्टमेंट है। और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो आप किसी से भी करा सकते हैं। नहीं, भाई जैसे वाटर वाटर टैंक, अगर आपने आपके स्कूल में अगर 10 वाटर टैंक है, आपने 10 वाटर टैंक की क्लीनिंग करानी है, तो या तो पीडब्ल्यूडी करेगा या डीटीडीसी करेगा। और अगर एक आधा आपने कराना है, इमरजेंसी कराना है, तो वो आप किसी भी लोकल जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं आप उनसे करवाइए, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है ना। एसएमसी फंड्स जो है यू कैन यूज। और उसके लिए जो सिस्टम होता है कि भाई रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, बंदा होना चाहिए, उसके पास जीएसटी होनी चाहिए, इस तरह का आप देखेंगे। और वरना प्रैक्टिकली आप कुछ कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनके पास ऑथराइज्ड होते हैं, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डीलर की बन जाती है। आपने ऐसी बहुत एजेंसीज हैं जिस तरह के आपको कारपेंटर, प्लम्बर ये प्रोवाइड कराते हैं। दे आर लॉट ऑफ, यस सर, ओके सर। हाँ जी सर, और बताइए। आई कैन अंडरस्टैंड, लास्ट डे लास्ट ट्रेनिंग बड़ा मुश्किल होता है झेलना। किसी पार्टिसिपेंट का अभी और कोई सवाल है? कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहते हैं? शायद अब और कोई सवाल बचे नहीं है। हेलो, हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ, एक बार सरकार, उस टाइम मेरी आवाज निकल गई थी, तो सर ने तीसरा वो लिया है सेशन। हेलो जी हाँ जी मैडम। बताइए। हाँ मैडम जी। हाँ जी हेलो सर बोलिए। हाँ जी सर हाँ, बोलिए सर का बोलिए। नाम बताना, तो तीसरा सेशन लिया सर ने। सर का नाम है मिस्टर ब्रिजेश कुमार शर्मा। विवेक कुमार शर्मा। ब्रिजेश। विवेक कुमार शर्मा। सर ब्रिजेश कुमार शर्मा। हाँ मैडम, क्या क्या बताया? सर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी, लिख दूंगी। हाँ व्हाट्सएप पे बता दो तीसरे सेशन का एक बार, जो हम उस टाइम मेरा जो हाँ आवाज जी, चली गई। कोई ठीक बात नहीं सर। है, ओके ठीक। तो हम सेशन को भी यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच ब्रिजेश सर, बहुत जानकारी दी आपने। Thank you very much, and it was my pleasure to interact with this new team of team education, and let's hope that we do and contribute in this शिक्षा क्रांति। जहाँ भी आप लोग जाएं तो बहुत अच्छे आप वाइस प्रिंसिपल बने, और जो हमारा एक मकसद है to create human beings in our students with values वो पूरा हो। Thank you very much. थैंक यू सर। Please anytime have any query तो you can ask me। मैं यूएसडी स्कूल भी हूँ
और स्कूल में प्रिंसिपल भी हूँ, तो कभी किसी तरह से अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो आप प्लीज फील फ्री टू। गति साफ करके सुथरी लगनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। एक बार बता दो क्या कुछ थैंक यू। थैंक यू सो मच शर्मा सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू।